ہے بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سال نو پر کراچی میں ساحل سمندر، نمائش چرنگی، نیا ناظم آباد، 5 اسٹار چرنگی، بحریہ ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف مقامات پر نوجوانوں نے آتش بازی کی اور نئے سال کا خوب جشن منایا۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ میوزک کنسرٹ میں گلوکار عاطف اسلم اور دیگر فنکاروں کی پرفارمنس نے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ سال نو کے پہلے طلوع آفتاب کا نظارہ دیکھنے بھی لوگوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر پہنچی۔ سال 2022 تمام تر رعنائیاں اور تلخ و شیریں یادیں اپنے اندر سمو کر اختتام پذیر۔ نئی امنگوں، امیدوں اور خوشیوں کے ساتھ سال 2023 کا سورج طلوع ہو گیا۔ شہریوں نے نئے خواب آنکھوں میں سجا کر سال نو کے طلوع آفتاب کا نظارہ کیا۔ منچلوں کی بڑی تعداد سی ویو اور دو دریا پہنچی، جہاں سمندر سے اٹھتے نئے سال کے پہلے طلوع آفتاب کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ سال 2023 کا پہلا سورج دیکھنے کے لیے لوگ ملک کے دیگر شہروں سے بھی کراچی پہنچے۔ اس سے قبل رات 12 بجتے ہی سال نو کے آغاز پر شہر بھر میں آتش بازی اور جشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کراچی ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں سے گونج اٹھی۔ بحریہ ٹاؤن میں دلکش آتش بازی اور جھلملاتی روشنیوں نے دل موہ لیے۔ میوزک کنسرٹ میں بھی لوگ عاطف اسلم اور دیگر فنکاروں کی پرفارمنس پر جھوم اٹھے۔ سال نو کے موقع پر 5 اسٹار چورنگی پر بھی پرجوش انداز میں نئے سال کو خوش آمدید کہا گیا۔ آتش بازی کا بھی مظاہرہ ہوا۔ سال نو کی خوشی میں نیا ناظم آباد میں آتش بازی کا اہتمام کیا گیا۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے حوالے سے ہی آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہر کا دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، سید ناصر حسین شاہ، مرتضی وہاب ان کے ہمراہ رہے ہیں۔ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سڑک پر کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ ریڈ لائن چیک پوسٹ 6 ملیر کینٹ کے پاس جاری کام کا جائزہ لیا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چھٹی کے روز جو ہے وہ شہر بھر کا دورہ کیا ہے اور صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن ان کے ہمراہ رہے۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب ان کے ہمراہ رہے ہیں۔ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سڑک پر کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ ریڈ لائن چیک پوسٹ 6 ملیر کینٹ کے پاس جاری کام کا انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہر کا دورہ کیا ہے اور بچوں کے ساتھ انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مراد علی شاہ نے ڈیڈ ریک سے تجاوزات ختم کرا کے کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئے سال پر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا مقصد بچوں میں شوق پیدا کرنا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا دورے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ۔ بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج صبح سے جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس میں ان کی جانب سے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس دورے پر ان کے ساتھ جو ہے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، مرتضی وہاب اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس سٹی اسکول چیپٹر کے مقام کا بھی جائزہ لیا ہے، جبکہ نئے سال کے آغاز پر انہوں نے جو ہے بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ کرکٹ بھی کھیلی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بی آر ٹی ریڈ لائن کے کام کا بھی جناح ایوینیو پر جو ہے جائزہ لیا ہے، جس پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے انہیں جو ہے وہ تفصیلی جو بریفنگ دی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہنچے تھے، جہاں ان کی جانب سے جوہر میں جاری فلائی اوور پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے یہ پروجیکٹ جو ہے 23 مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا شعیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ میونسپل کمشنر فہیم خان نے کہا ہے کہ ضلع شرقی کے پارکوں کو ہرا بھرا اور صحت مندانہ سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں معیار کے ساتھ ساتھ تکنیکی مہارتوں کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان نے دیگر افسران کے ہمراہ گلستان عائشہ پارک کشمیر روڈ اور پی آئی بی کالونی میں سڑک کی تعمیر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے موجودہ افسران کو ہدایت کی کہ گلستان عائشہ پارک کو اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم سی ایسٹ کی بہتری کے لیے جہاں تک ممکن ہوگا ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر کے قیام کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اب مرحلہ وار ضلع شرقی کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ بلدیہ شرقی کے افسران ارشاد ظفیر اور راؤ شمشاد اور محکمہ پاکس کے ملازمین بھی موجود تھے۔ بڑے آپ کو بتایا کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے رحمان بابا ایکسپریس کو ذیلی ادارے پراکس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ رحمان بابا ایکسپریس کراچی سے پشاور کے درمیان چلتی ہے۔ مزید بات کریں گے عادیہ ناز سے۔ عادیہ بتائیے گا۔
बिल्कुल रहमान बाबा एक्सप्रेस को आज पाकिस्तान रेलवे की जानिब से प्रैक्स के हवाले कर दिया गया है। और प्रैक्स पाकिस्तान रेलवे का ज़ेली इदारा है जो कि कराची में ही टिकटिंग के मामलात जो है वो देखता है, और इस इदारे के हवाले अब रहमान बाबा एक्सप्रेस को कर दिया गया है। यानी कि जो कराची से पेशावर तक गाड़ी जाती है वो अब प्रैक्स का इदारा जो है वो चलाएगा, और इसके तमाम जो मामलात हैं उसको वही देखेगा। मेंटेनेंस हो गई, उसके टिकटिंग के मामलात हो गए, तमाम अब इसी इदारे के ज़िम्मे है। रहमान बाबा एक्सप्रेस 10 बजे जो है वो कराची से रवाना होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, और अगले दिन जो है वो रावलपिंडी पेशावर पहुंचती है। इसके कई मुसाफिर हैं जो कि इस सफ़र से, इस गाड़ी से जो है वो इस्तेफ़ादा करते हैं, इसके सफ़र से इस्तेफ़ादा करते हैं। पाकिस्तान रेलवे का इस हवाले से ये बताना है कि पहले इसके मामलात जो है वो रेलवे के अंडर थे, यानी कि टिकटिंग जो होती थी और जो टिकट की प्राइस मुख्तस थी वही रेलवे लिया करता था, लेकिन अब प्रैक्स की मर्ज़ी है कि वो जितना मर्ज़ी टिकट जो है वो इसके ऊपर चार्ज करे। अलबत्ता इसकी मेंटेनेंस और इसके जो अंदर के दीगर मामलात हैं वो तमाम अब यही इदारा देखेगा। प्रैक्स के मैनेजमेंट इस हवाले से ये कहती है कि इस गाड़ी की जो मुश्किलात हैं या इसके मुसाफिरों को जो मुश्किलात देखना पड़ती हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको हल किया जाए, और जो पहले इसका सफ़र था उससे कहीं बेहतर सफ़र जो है वो आवाम को मुहैया किया जाए। आवाम को ये सफ़र मुहैया किया जाना, महकमा रेलवे का ये फैसला किस कदर मुआविन साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और गैस नहीं आ रही तो अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिजली और गैस के बगैर चलने वाला चूल्हा मार्केट में आ गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये चूल्हा कैसे काम करता है। जी बिल्कुल, कराची में गैस बहरान ने सर उठाया तो शहरियों ने इसका तोड़ निकालने के लिए पंजाब से आए गए जो बायोगैस चूल्हे हैं उनकी ख़रीदारी शुरू कर दी है। कराची की जोड़िया बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएं, ये क्या बजटेड हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, खाना आसानी से पक जाता है 2 वक्त का? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बजटेड हैं ये, और बायोगैस स्टोव इसे कहते हैं। ठीक है, आपकी एक वक्त की जो 2 वक्त का जो खाना है वो 100-120 रुपये में आपका बन जाता है ये। और इसके हवाले से बताएं कीमतें क्या हैं इसकी और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है? सर मुख्तलिफ रेट हैं इसके। ठीक है, स्टार्टिंग जो है वो मेरे पास 2200 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक का चूल्हा है। ठीक है, तरीके का इसका जो है वो ये है कि इसके पैलेट्स आते हैं, वुड पैलेट्स, वो आपने 2 मुट्ठी पर डालने इसमें, और मिट्टी का तेल से आपने आग लगा देनी। 5 मिनट बाद आपके इसका फैन ऑन कर देना है, बस सिंपल। अच्छा, जो पैलेट्स हैं उनकी क्या कीमत है, किस हिसाब से? उसमें 2 चीज़ें हैं सर। एक एग्रीकल्चर वेस्ट है, ठीक है, वो जो है 70 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, और एक जो काव डंग है मीन्स गोबर है वो 55 रुपये पर केजी है। ये सिर्फ पैलेट से ही चलते हैं या इसमें कोई बैटरी वगैरह का सिस्टम भी है? जी बिल्कुल, ये 12 वॉट पे भी फ़ैन चल जाता है और 220 पे भी चल जाता है और बैटरी पे भी इवन चल जाता है ये। तो ये मैन्युफैक्चर के हवाले से बताइएगा, यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा क्योंकि कीमत जो आप बता रहे हैं 2200 से 5,500, तो इसकी क्या वजूहत हैं? मतलब इससे बेहतर क्वालिटी वाला भी है, 2200 सबसे लो क्वालिटी है? जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसकी पंजाब में हो रही है, गुजरांवाला में, और क्वालिटी जी बिल्कुल 2200 वाला जो है वो उसके जो चादर है वो बिल्कुल पतली है। ठीक है, उसके बाद 3,500 रुपये का है, फिर 4,500 रुपये का उससे बेहतर चादर है। सबसे आखिरी जो चादर है, मतलब बहुत अच्छी चादर है जो बाहर से गर्म नहीं होती, वो 5,500 रुपये तक की है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि बायोगैस चूल्हे जो हैं वो बजटेड हैं, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वो इसकी तरफ जो है मुतवज्जा हो रहे हैं। जो इसमें इस्तेमाल होने वाले पैलेट्स हैं वो 70 से 75 रुपये में जाते हैं और 2 वक्त खाना जो है वो उसमें बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से साल नौ की आमद पर खुशी का इजहार किया गया। कहते हैं कि नया साल सबको मुबारक हो। उम्मीद है कि नया साल मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। 2022 तो आपने देखा कि बड़ी आजमाइश का साल भी गुजरा है, अच्छी चीज़ें भी हुई और आजमाइशें भी आईं। 2023 अल्लाह पाक से दुआगू हैं कि आलम इंसानियत के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर साल साबित। जी 2022 का जो साल था वो सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है हमने देखा कि एक चैलेंजिंग ईयर था। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह 2023 जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए और पाकिस्तान के खारजी एतबार से और दाखिली एतबार से जो मसाइल हैं उनको बेहतर बनाने का साल है और बेहतरी का इंशाल्लाह साल होगा। देखिए 22 भी बहुत मुश्किल साल गुजरा है। अब जो चैलेंजेस हैं मुझे उम्मीद है कि चूँकि हुकूमत में बैठी जो सियासी जमातें हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास है और सीजन्स पॉलिटिशियंस हैं तमाम के तमाम, मुझे उम्मीद है कि 2023 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबर आएगा।
जद्दोजहद से भरपूर साल था, लेकिन माशी उससे हिसाब से बड़ा सख्त हम एक दौर में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि IMF से जो माहदे किए गए थे उनको रिव्यू कराने के बावजूद भी अभी तक अवाम को रिलीफ नहीं मिला है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तो बचाई गई, लेकिन बहरहाल एक सख्त साल है और अभी आगे भी माशी फैसले आने हैं। और 2023 जो है वो हम बहुत अच्छा देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। 22 पाकिस्तान के लिए अच्छा साल साबित हुआ, क्योंकि हमें एक करप्ट नाबालिग घड़ी चोर से निजात मिली, और 2023 इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। ये साल इलेक्शन का साल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत नियाजी गवर्नमेंट ने की पिछले 3-3.5 साल में, मुआशी तौर पर पाकिस्तान जिस तरह पीछे चला गया, 50 साल पीछे चला गया, और उसको हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हम 2023 को बहुत पुरुम्मीद देख रहे हैं। 2023 का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी का सूरज है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। देखिए, मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि 2023 का साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छा साल साबित हो। जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं, जो एक आम आदमी को चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें महंगाई एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको हुकूमत उबूर करने में कामयाब हो। उसी तरीके से जो पाकिस्तान को दरपेश फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उसको हुकूमत उबूर करने में कामयाब। नाजरीन, 2022 भी रुखसत हो गया। शोबिस से वाबस्ता शख्सियात कहती हैं कि गुजरने वाला साल ज़्यादा बेहतर नहीं था। नए साल से कई उम्मीदें हैं। साल नौ के बारे में फनकारों ने क्या कहा, जानते हैं राहील बेग की रिपोर्ट में। गुज़श्ता साल कोई मुसल्लत रही होगी, गुज़श्ता साल के सुख अब के साल दे मौला। साल 2022 रुखसत हो गया। किसी के लिए साल अच्छा साबित हुआ तो किसी के लिए साल कुछ बेहतर नहीं रहा। शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने भी इस साल को अच्छा साल करार नहीं दिया। अदाकारा आयशा उमर कहती हैं कि 2022 बेहतर साल नहीं था, सियासी और मुआशी मसाइल रहे। उम्मीद है 2023 अच्छा होगा। बहुत मुश्किल साल था, लेकिन बहुत सिखाने वाला साल था, बहुत कुछ सीखा है, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 2023। गुलकार अरशद महमूद के लिए भी साल गुज़श्ता बेहतर नहीं गुजरा। बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बड़े दिल गुर्दे के साथ ये महंगाई जो है इसका मुकाबला किया, क्योंकि 2022 में काफ़ी महंगाई रही, और ख़ास तौर पे अप्रैल के बाद काफ़ी महंगाई रही, और अभी तक है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महंगाई का जो दलदल है इससे निकाले। ताहम फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से अपनी जगह बनाने वाली अदाकारा साइमा बलोच के लिए 2022 अच्छा साल रहा। मौला जट की कामयाबी के बाद फिल्म सुपर पंजाबी हीरोइन के तौर पर जलवागर होंगी। 2022 में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा कि आगे ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए नहीं जिया जा सकता। कब तक आप अपने लिए जिएंगे? वी आर हियर टू फुलफिल आवर पर्पस। वी हैव वन पर्पस हमारी ज़िंदगी के लिए। तो हाँ, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिला। इट वॉज अमेजिंग। फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार गुलाम महीउद्दीन कहते हैं, गुजरा हुआ साल मईशत के लिए बुरा रहा, फिल्म साजी का रुझान भी कम था। तो 2022 वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि देखें बेसिक जो बात है वो हमारी मईशत है, हमारे जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं इनको सॉल्व होना चाहिए। तो ये होंगे तो हर तरफ खुशहाली होगी। अदाकार फवाद खान अपना नया साल ह्यूस्टन में मनाएंगे, जहां इंटरनेशनल आर्ट प्रॉम्प्टर रिहान सिद्दीकी के ग्रैंड म्यूजिक कॉन्सर्ट में शिरकत करेंगे। I'm Fawad Khan and I'm coming to celebrate this New Year's Eve with you at the Elite. The show is brought to you by Rehan Siddiqui and I hope to see you there. मारूफ ब्यूटी एक्सपर्ट एंजेला मार्शल के लिए 2022 साल अच्छा साबित हुआ। कई एजाज़ात इनके हिस्से में आए। पर्सनली आई हैव अचीव्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस ईयर। माशाल्लाह से मुझे 2-3 अवार्ड्स मिले। 2022 जैसा तैसा गुजर ही गया। साल 9 से शोबे से उम्मीदें हैं। राहील बेग, सिटी 21। साल 2022 में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि साल 2022 में 1 किलो आटा 65 रुपए से बढ़कर 130 रुपए पर पहुंच गया। टूटा चावल 70 रुपए से बढ़कर 150 रुपए पर जा पहुंचा। दालों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। साल 2022 में महंगाई ने हर चीज की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। होलसेल ग्रोसर्स के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि डॉलर की शदीद किल्लत ने महंगाई की रफ्तार तेज कर दी। ये भी कहा है कि इतनी महंगाई कभी नहीं देखी थी। कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ। बेहतरीन बासमती चावल 190 रुपए से बढ़कर 350 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया। आप समझ लें कि जो चावल नॉर्मल होते थे 100 रुपए, वो 200 रुपए
जो बहुत ही अच्छा चावल होता था 180 रुपये, आज 350 रुपये। आटा जो स्टार्ट में 65 रुपये था, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह 130 पे पहुंच चुका है। मुझे आप बताएं, गरीब आदमी कहां से सर्वाइव करेगा? होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा है कि हुकूमत को इस मुसलसल बढ़ती महंगाई से कोई असर नहीं हो रहा। हुकूमत से ना माली ना मुआशी मुश्किलात कुछ भी काबू नहीं आ रहा। लड़ी रहे, वो पाकिस्तान को इस नहज पे ले जा गए। कोई भी फॉरनर, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी आपकी मदद इस हाल में नहीं करेगा। स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो मदद होगी, और सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट इसको चला सकते हैं। सियासतदानों को अब रेस्ट देना चाहिए 2 साल के लिए, मैं तो बोलता हूँ। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा है कि अब तो सब ही कह रहे हैं कि ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे मुल्क की मुश्किलात कम हो सकें और मुल्क नए साल में दुरुस्त सिमत में चल सके। गैस बहरान बरकरार है। शहर में CNG स्टेशन के बाद कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर जो है वो अमल दरामद जारी है, और आज इतवार के रोज़ उसी प्लान के तहत कराची की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और उनके जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको गैस की फराहमी बंद कर दी गई है, और ये फराहमी 24 घंटों के लिए जो है बताया जा रहा है मुअत्तल रहेगी। सुबह 8 बजे आज गैस की फराहमी बंद की गई थी, जो कि फिर सुबह 8 बजे तक जो है वो बंद रखी जाएगी। इसी तरह से अगर CNG सेक्टर के हवाले से बात करें तो इसी गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत जो है वो जुम्मे के रोज़ कराची में CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद की गई थी, जो कि 3 रोज़ा बंदिश का सामना रहेगा। और कल सुबह 8 बजे यानी पीर सुबह 8 बजे ही कैप्टिव पावर प्लांट के साथ ही गैस की फराहमी जो है वो बहाल की जाएगी। गैस हुकाम का कहना है कि इस वक्त घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कराची शहर में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। घरेलू सार्फिन को तरजीह बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है वो गैस की फराहमी बंद की जा रही है, और उसी पर अमल दरामद करते हुए आज कराची की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद की गई है, और बताया जा रहा है कि 24 घंटे के बाद करीब सुबह 8 बजे को जो है वो गैस की तमाम तर जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने हमें अपडेट किया। साल बैक शहर कायद के वासी खाने पीने के तो शौकीन हैं ही। नए साल के पहले दिन अहलियान कराची ने नाश्ता करने के लिए भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स का रुख कर लिया है। बात करेंगे राबिल अशरफ से। राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए साल का पहला दिन है और आज है इतवार का दिन भी, तो लोग की बड़ी फैमिलीज़ की जो है बड़ी तादाद ने रुख किया है बाहर नाश्ते का। और मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु मंदिर पर, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर जो है फैमिलीज़ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि आज साल का पहला दिन है और इतवार का भी दिन है, तो क्या सोचा था आप लोगों ने कि ये नए साल की किस तरह का शुरुआत करनी है? रात को तो हम सारी रात जागे हैं, न्यू ईयर के लिए बैरियर टाउन गए हुए थे, बहुत इंजॉय किया। अभी ब्रेकफास्ट भी बाहर किया, अभी जाकर घर में सोएंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है फैमिलीज मौजूद थी। उनका यही कहना है कि 2022 तो गुजर चुका है, लेकिन 2023 के लिए हम लोग बहुत सी पूरी उम्मीद है कि नया साल जो है हमारे लिए बहुत पुरुमीद साबित होगा यहाँ पर। और इनका यही कहना है कि रात में हमने जो है बहुत इंजॉय किया न्यू ईयर नाइट्स को, लेकिन अब जो है हमने पहला दिन जो है नाश्ता उससे हमने। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। FBR से खबर शामिल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स इकट्ठा करने से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। तर्जुमान FBR के मुताबिक FBR का दिसंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2022 के महीने के दौरान बराह रास्त टैक्सेस की वसूलियों में 66% का गैर मामूली इजाफा हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स इकट्ठा करने से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। तर्जुमान FBR के मुताबिक FBR का दिसंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2022 के महीने के दौरान बराह रास्त टैक्सेस की वसूली में 66% का गैर मामूली इजाफा हुआ। नाजरीन, साल 2022 सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे का साल रहा। साल भर में 1 तोला सोना 57,900 रुपये और 10 ग्राम सोना 49,640 रुपये तक महंगा हो गया। एक साल में 1 तोला चांदी की कीमत में 610 रुपये का इजाफा हुआ। साल 2022 में डॉलर की ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी करेंसी की गिरावट सोने की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह बनी। साल भर में आलमी मार्केट में सोना $4 महंगा होकर $1,824 फी औंस पर पाल में 1 तोला सोना में 57,900 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जनवरी 2022 में फी तोला सोना की कीमत 1,26,000 रुपए पर थी, जो एक साल में बढ़कर 1,83,900 रुपए तक जा पहुंची। साल 2022 में 10 ग्राम सोने की कीमत में 49,640 रुपए इजाफा हुआ। जनवरी 2022 में 10 ग्राम
ग्राम सोने की कीमत 1,08,025 रुपए थी, जो साल के अख्ताम तक बढ़कर 1,59,665 रुपए तक। साल 2022 में 1 तोला चांदी में 610 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 में 1 तोला चांदी की कीमत 1,460 रुपए से बढ़कर साल के अख्ताम तक 2070 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में एक साल में 48 रुपए के इजाफे की वजह से सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए कीवीज की टीम प्रैक्टिस कर रही है। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। मैं नेशनल स्टेडियम मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पाकिस्तान टीम तो प्रैक्टिस करने नहीं आई, आराम कर रही है। तमाम न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी आए, उन्होंने प्रैक्टिस की, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में मशक़ें की। तमाम पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद यहाँ पर आए, उन्होंने विकेट कीपिंग काफ़ी प्रैक्टिस की, बैटिंग की प्रैक्टिस की। उनके साथ जो है टीम के जो ऑफिशियल है वो रहे, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी जो पिछले मैच में उनसे मिसिंग हुई थी, उन्होंने कोशिश की कि उस पर काबू पा जाए, उन खामियों पर। तो काफ़ी उनके साथ ऑफिसर ने मिलकर काम किया है। और आपको बताया चलूँ कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच कल इसी नेशनल स्टेडियम में मैदान पर शुरू होने जा रहा है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था और शाहिद आफरीदी की हिदायत पर आज पाकिस्तान के हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ भी नेशनल स्टेडियम आए। उन्होंने पिच की तैयारी का जायज़ा लिया। उनकी कोशिश है पिच ऐसी बनाई जाए जिस पर फैसला आए, तेज़ और बाउंसी विकटें बनाए जाने का इम्कान है। और सिलेक्टर काफ़ी इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि मैच का फैसला आए और मैच से शायकीन को जो है एक दिलचस्पी इसमें पैदा हो। अगर ड्रॉ होगा तो शायकीन की दिलचस्पी मज़ीद कम होती जाएगी। पिछले मैचों में शायकीन की तादाद इंतहाई कम रही थी, जिसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट में शायकीन का दाखिला मुफ्त कर दिया है। उनकी कोशिश है कि किस तरह यहाँ पे शायकीन आए, मैच में देखें और अपने स्टार्स को, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम नेशनल स्टेडियम के मैदान पे इस दौरे में जो है कुछ 30 साल बाद, तकरीबन 3 दहाई बाद हिस्सा ले रही है। तो उनकी कोशिश है कि ये मैच सीरीज़ जो फैसला कौन हो और अच्छे मुकाबले शायकीन को देखने को मिलें, और वो शायकीन जो चाहते हैं बगैर कोई पैसा दिए नेशनल स्टेडियम में आ सकें तो वो कल आ सकते हैं, वो उनको आना चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड की भी ख्वाहिश यही है। तो और आपको और बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो सड़कें हैं उन पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। 4 तरफ की सड़कें आज प्रैक्टिस के रोज़ खुली हैं। ताहम नेशनल स्टेडियम की जब मैच होगा कल तो एक तरफ की सड़क सिर्फ मस्जिद सेंटर से आने वाली बंद होगी। उसके अलावा तमाम कारसाज, नेशनल शार फैसल से आने वाली सड़क, भले डालमिया से आने वाली सड़क हो या आखान हॉस्पिटल से, तमाम खुली रहेंगी। कोशिश ये की जा रही शायकीन को, शहरियों को कम से कम। बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। HRD की जानिब से कोरंगी 5 नंबर पर टेप बॉल क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया है। DMC क्रिकेट लीग में सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। बात करेंगे ताबिश मीर से। ताबिश, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के हवाले से जो है मुसलसल हम देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के शोबे में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए तो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जो है कराची का, वहाँ ख़ास तौर पर ये सिलसिला जारी है। और कोरंगी नंबर 5 का क्रिकेट ग्राउंड है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखा सके मेरे अकब में जो है इस वक्त भी मैच का सिलसिला जारी है। टेप बॉल मैच हो रहा है, 5-5 ओवर पर मुश्तमिल ये टेप बॉल मैच है, जहाँ नौजवान खिलाड़ी, स्कूल और कॉलेजेस के नौजवान खिलाड़ी जो हैं निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के, वो इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में HRD विंग के स्पोर्ट्स डायरेक्टर तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से बात भी करेंगे और उनसे इस हवाले से तफसील भी जानेंगे। तारिक साहब, मुझे बताइए किस तरीके से आज का पूरा इवेंट देख रहे हैं और एक रोज़ा इवेंट के हवाले से क्या काविश हैं आपके इदारे की? HRD स्पोर्ट्स विंग इसके ऊपर गुज़िश्ता 4 साल से काम कर रहा है ग्रास रूट लेवल पर। बुनियादी तौर पर हम प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि अब प्रॉपर तरीके से ग्रास रूट लेवल पर काम करने की अशद ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर का हिस्सा बने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक जाने हम देखते हैं ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के हवाले से बात तो की जाती है, लेकिन वो मौक़े फराहम किए जा रहे हैं आपकी जो इंतज़ामिया की जानिब से या फिर आपकी तंजीम की जानिब से? मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि HRD स्पोर्ट्स विंग और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट और DMC इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और इसके ऊपर सिर्फ काम ही नहीं, लफ्ज़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, अमली तौर पे काम हो रहा है, जिसका आज आप अमली नमूना देख रहे होंगे कि माशाल्लाह जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे शोबों के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है।
जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था। तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि काफ़ी जो है ये खुशाइंद अमल है कि एक जानिब ग्रास रूट लेवल क्रिकेट जो है उस पर काम हो रहा है और ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है इनकी तंजीम कोशाएँ है कि ताकि ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकें। जी, बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा है। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का पेज। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 21।